السلام علیکم پیارے بچوں، میں نزہت تنویر احمد باگلکوٹے، اسسٹنٹ ٹیچر مہاراشٹرا اردو ہائی اسکول کڑوئی، اپنی اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارا ارتقا، ماحول کا مطالعہ، حصہ دوم، جماعت پنجم۔ سبق کا نام ہے تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، زمانے ماضی کے واقعات کا علم دینے والا سائنس یعنی تاریخ۔ اب زمانے ماضی یعنی جو زمانہ ہمارا گزر چکا ہے، اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، اس کا پتہ دینے والا سائنس ہی کیا کہلاتا ہے؟ تاریخ کہلاتا ہے۔ بچوں، آپ کو اس تصویر میں کون نظر آ رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہیں چھترپتی شیواجی مہاراج۔ گزشتہ سال چوتھی جماعت میں آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ہیں شیواجی مہاراج۔ شیواجی مہاراج کے والد کا نام کیا تھا؟ شاجی راجے۔ شیواجی مہاراج کی ماں کا نام کیا تھا؟ جیجا بائی۔ یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، جیجا بائی جو انہیں اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ شیواجی مہاراج کی پیدائش آپ جانتے ہیں، وہ شیونیری قلعے میں پیدا ہوئے تھے۔ سنہ 1600 میں ان کی شیونیری قلعے میں پیدائش ہوئی تھی۔ اب شیواجی مہاراج نے سوراج قائم کیا تھا، اور سوراج کے قیام کے لیے انہیں کافی جد و جہدیں بھی کرنی پڑی تھی، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، جد و جہد کوشش کرنی پڑی تھی۔ تو اس طرح سے شیواجی مہاراج کی زندگی کے حالات اور سوراج کے قیام کے لیے ان کی سرگرمیوں کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو بچوں، شیواجی مہاراج کی پیدائش سنہ 1630 میں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیواجی مہاراج کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے کا زمانہ، اسے ہم 400 سال پرانا یا 400 سال پہلے کا گزرا ہوا زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاریخ کا مطلب ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کا اندراج اور مطالعہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اب آپ جماعت میں بیٹھے ہو۔ اسکول آنے سے پہلے آپ کہاں ہوتے ہو؟ اپنے گھر پر ہوتے ہو۔ تو جب آپ گھر پر تھے وہ ماضی، اب آپ کلاس میں ہو یعنی وہ ہے حال۔ اسی طرح سے ہم کرتے ہیں زمانوں کی تقسیم۔ ہم اپنے معاملات میں سہولت کے لیے زمانے کے مختلف طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم ابھی، کچھ وقت پہلے، کچھ دیر بعد، یا آج، کل، آنے والا کل، آنے والا سال، اس سال، آئندہ سال وغیرہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم زمانے کو کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم کر رہے ہیں۔ گویا غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے دل میں زمانے کا شمار کرتے ہیں، جیسے ان لفظوں سے ابھی، آج، اس سال وغیرہ۔ یہ لفظوں کا استعمال کرنے سے ایک بات ذہن میں ہمیں آتی ہے کہ آج، اس سال وغیرہ لفظوں کے استعمال سے ذہن میں آنے والا زمانہ زمانے حال ہوتا ہے۔ کچھ دیر پہلے، کل، گزرا ہوا، گزشتہ سال وغیرہ الفاظ زمانے ماضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد،
कल यानी आने वाला, आइंदा साल, इन लफ्ज़ों से ज़माने मुस्तक़बिल का ख़याल आता है। तो प्यारे बच्चों, ज़माने की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी? ज़माने हाल, ज़माने माज़ी, ज़माने मुस्तक़बिल। अब देखिए, ज़माने माज़ी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, ज़माने हाल यानी अभी जो जारी ज़माना, ज़माने मुस्तक़बिल यानी आने वाला ज़माना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, ज़माने माज़ी में कई वाक़यात हमारे साथ हो चुके होते हैं। मसलन आज आपकी उम्र 10 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पैदाइश का वाक़या माज़ी में 10 साल पहले हुआ था। यानी 10 साल पहले आप कैसे थे? इस शक्ल की तरफ देखिए, इस तस्वीर में जो झूले में सोया हुआ बच्चा है ना, आप वैसे थे 10 साल पहले। और आज आप कैसे हैं? यानी ये बीच वाली तस्वीर में आज आप 10 साल के हैं। उसी तरह 10 साल बाद यानी ज़माने मुस्तक़बिल में आपकी उम्र 20 साल होगी। यानी लेफ़्ट वाली जो तस्वीर आपको दिख रही है, आप और 10 साल या 20 साल गुजरने के बाद आपकी उम्र के 20 साल हो जाएगी। उस वक्त आप ऐसे दिखोगे। तो इसका मतलब क्या? अपनी पैदाइश से लेकर आज तक यानी गुज़रा हुआ ज़माना उस शख्स की ज़िंदगी का ज़माने माज़ी है। क्या है? उस शख्स का ज़माने माज़ी। जैसे कि आप जब पैदा हुए थे 10 साल पहले आप ऐसे थे, छोटे से। अब आज आप कैसे हो? 10 साल के हो। और कल आप जब बड़े हो जाओगे यानी और 10 साल बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इस तरह से जवान दिखोगे। तो इस तस्वीर में देखिए, एक छोटा सा बच्चा, फिर है बीच में, उसके बाद है एक बड़ा वाला बच्चा। मतलब क्या? आप 10 साल पहले ऐसे छोटे थे, आज आप 10 साल के हो, और आने वाले ज़माने में जब आप 20 साल के हो जाओगे यानी इस तरह से जवान दिखोगे। तो प्यारे बच्चों, पैदाइश का ज़माना कहलाता है ज़माने माज़ी, जो 10 साल पहले हुआ था। आज आप 10 साल के हो यानी ये है ज़माने हाल। उसी तरह से जब आप 20 साल के हो जाओगे यानी इस तरह से बड़े दिखोगे तो वो होगा आपका ज़माने मुस्तक़बिल। इसी को हम अब दूसरी मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, पिछले साल आप 4ठी जमात में थे यानी वो आपका ज़माने माज़ी था। अब आप किस जमात में हो? पंजुम यानी 5वीं जमात में हो, यानी ये आपका ज़माने हाल चल रहा है। और अगले साल जब आप 6ठी जमात में चले जाओगे यानी वो आपका ज़माने मुस्तक़बिल होगा। इस तरह पैदाइश से लेकर आज तक का यानी गुज़रा हुआ ज़माना उस शख्स की ज़िंदगी का ज़माने माज़ी होता है। ध्यान में रखिए, ज़माने माज़ी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को तारीख़ कहते हैं। यानी माज़ी में हमारे साथ जो जो वाक़यात हुए हैं ना, उसको समझने का साइंस ही क्या है? असल में तारीख़ है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तारीख़ किसे कहते हैं। EVS 2 माहौल का मुताला हिस्सा दुगम का सबक नंबर 1 तारीख़ किसे कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। तो इसका अपना अगला पॉइंट है तारीख़ का साइंसी तरीका। प्यारे बच्चों, तरीका ये लफ्ज़ आप कई बार सुन चुके हैं। हर मज़मून को पेश करने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि हम तीसरी और चौथी जमात में मज़मून माहौल के मुताले की किताबों में अलग अलग साइंस, जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये अलग अलग साइंस से मुतारुफ़ हो चुके हैं, हम उसे जान चुके हैं। अब देखिए, किसी भी सबूत को अमलन तजुर्बात की कसौटी पर बार बार परखा जा सकना,
इन तमाम साइंसों की खुसूसियत है। क्या किया जाता है, जो भी सबूत मिलता है उन्हें, उस सबूत को क्या किया जाता है, मुख्तलिफ कसौटियों पर उसको बार बार परखा जाता है, या दूसरे साइंस की मदद भी ली जाती है। तो सबूतों पर परखते हैं, उसे जांचते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। फिर हर सबूत को मुख्तलिफ कसौटियों पर परखने के बाद उस पर एतमाद किया जाता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, उसे तय करने के तरीके को ही साइंसी तरीका कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारी पैदाइश के बाद हमें बहुत सारी बातें मालूम होती हैं क्या? नहीं मालूम होती। लेकिन हमारे दादी दादा, माँ बाप वगैरह हमें अपने बचपन की बहुत सी मज़ेदार बातें सुनाते रहते हैं। ये बातें उनकी याददाश्त में होती हैं, इसलिए वो हमें सुनाते हैं। जब किसी बात को मुख्तलिफ अशख़ास अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाते हैं, तब उनके बयान में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ऐसी हालत में हमारे सामने सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल सही क्या है। ये तय करने के लिए कही गई बातों की बारीक बीनी से छानबीन करना होता है। जैसा कि आप जब छोटे थे तो आपकी दादी आपको बताती हैं कि बचपन में तुम बहुत शरारती थे, बहुत शरारतें करते थे, ऐसे आपको दादी ने बताया। उसी तरह आपकी माँ ने आपको बताया कि तुम बचपन में बड़े समझदार थे, सबकी मदद करते थे। तो ऐसे वक्त में फिर आपके दिमाग में सवाल घूमता है। क्या सवाल घूमता है? क्या मैं वाकई में बचपन में शरारती था या मैं समझदार था? तो फिर उस वक्त आपको आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं। फिर आप क्या करते हो, उन बातों को अच्छी तरह से छानबीन करके समझ जाते हो कि कभी कभी मैं शरारतें करता था और कभी कभी मैं दूसरों की मदद भी करता था। तो देखिए प्यारे बच्चों, माजी में होने वाले जो वाक़ियात हैं, इनको ठीक उसी तरह वजूद में लाने का तजुर्बा करना मुमकिन नहीं है। देखिए शिवाजी महाराज ने, इस तस्वीर में देखिए, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की उंगलियां काटी थी। क्या इस वाक़ये को हम दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसको दोबारा हम वैसे ही जैसे हुआ था माजी के ज़माने में अब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसको वजूद में लाने का तजुर्बा मुमकिन नहीं है। इसलिए तारीख़ को पेश करने का तरीका दूसरे साइंसी उलूम से मुख्तलिफ होता है, बहुत अलग होता है। चुनांचा उनके सबूत तलाश करने पड़ते हैं, जांच पड़ताल करनी पड़ती है, उनकी कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं। तो जांच पड़ताल करने, उनकी कड़ियाँ जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। साइंसी तरीक़ों की उसमें मदद ली जाती है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि तारीख़ एक साइंस है। तारीख़ सिर्फ ख़याली बुनियाद पर नहीं लिखी जा सकती। सिर्फ ख्याल करके तारीख़ नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबूत तलाश करने पड़ते हैं, जांच पड़ताल करनी पड़ती है और कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये है कहीं म्यूज़ियम। जब हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो हमें वहाँ पर कदीम अशिया, इमारतें, दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के, तांबे की तहरीर पर लिखी हुई तहरीरें, हाँ, इसके अलावा कंदा तहरीरें, यानी जिसको खोदा गया हो, कंदा करना यानी, दस्तावेज़ात, किताबें, लोगों की याददाश्त में महफूज किस्से, कहानियाँ और गीत वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये तारीख़ के माखज़ कहलाते हैं। माखज़ यानी ज़राए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हमें तारीख़ की पिछले ज़माने की मालूमात हासिल होती है, इसलिए इन्हें तारीख़ के माखज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तारीख के माखज़। तारीख के माखज़ 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। ये तारीख के क्या कहलाते हैं? माखज़ कहलाते हैं। क्योंकि इन ज़राए से मिलने वाले सबूतों की मदद से ये तलाश किया जाता है कि माजी में ठीक ठीक क्या हुआ और कैसे हुआ। इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है। सही है कि गलत है, ये जांचा जाता है। कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाक़यात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। इसी को साइंसी तरीका कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्या किया जाता है? जो भी सबूत मिले हैं उन सबूतों को जांचा जाता है, परखा जाता है और तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? साइंसी तरीका। तारीख का साइंसी तरीका यही कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तारीख किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे की मालूमात। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस पॉइंट की तरफ गौर करेंगे। तारीख और हम, यानी तारीख का और हमारा क्या रिश्ता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। साइंस के मुताले से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मसलन माहौलियाती साइंस। माहौलियाती साइंस माहौलियात की बर्बादी और आलूदगी जैसे मसाइल और उनका हल का मुताला करता है। माहौलियाती साइंस क्या करता है? माहौलियात की आलूदगी, उसकी बर्बादी जैसे जो मसाइल हमारे सामने हैं उसका मुताला कौन करता है? माहौलियाती साइंस करता है। इसी तरह हर साइंस अपने अपने मौज़ूआत का मुताला करता है। तारीख़ माजी में पेश आने वाले वाक़यात का मुताला करती है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे साइंस क्या कर रहा है? माहौलियाती साइंस हमें माहौलियाती आलूदगी, उसी तरह से माहौल की बर्बादी, फ़िज़ाई आलूदगी जैसी बातों का इल्म कौन दे रहा है हमको? माहौलियाती साइंस दे रहा है। तो उसी तरह तारीख़ क्या देता है हमको? माजी में पेश आने वाले वाक़यात का हमको क्या देती है? तारीख़ ख़बर देती है, या उसका हमें तारीख़ मुताला कराती है। अब देखिए बच्चों, इंसान के इनफरादी या इज्तिमाई कामों से, इनफरादी यानी जो अकेले किए गए हों, इज्तिमाई काम यानी जो सब मिलकर करते हैं। तो अकेले किए गए काम या इज्तिमाई यानी सब मिलकर किए गए कामों से इंसानी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह माहौल पैदा होता है और इसका असर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ता है। मसलन किसी गांव के लोग जब मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद से तमाम काम अंजाम देते हैं तो उस वक्त गांव खूब तरक्की करता है। लेकिन अगर किसी वजह से गांव के लोग मुत्तहिद न हो सके तब गांव की तरक्की में रुकावटें पेश आती हैं। यानी मुत्तहिद होकर काम करने से क्या होता है? आसानी होती है और हमें उस काम में कामयाबी मिलती है। अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारी तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। तो माजी के इंसानी समाज के ख़यालात, अमाल और उन अमाल के नताइज को तलाश करके तारीख़ कई सवालों के जवाब ढूंढ लेती है। यानी माजी के इंसानों ने क्या क्या किया था उसे, उनके नताइज को क्या करती है? तारीख़ ढूंढ लेती है। तारीख़ के मुताले से यह मालूम करना मुमकिन हो जाता है कि इंसानी समाज की तरक्की के लिए कौन सी बातें मतलूब हैं और कौन सी गैर मतलूब। यानी कौन सी बातें तलब की गई हैं और कौन सी गैर तलब। इस मुताले से यह भी मालूम होता है कि हाल में हम कैसा बर्ताव करें कि जिससे हमारा मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना क्या हो जाए? सुधर जाए। प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं आपको कुछ अजीम लोगों की तस्वीरें बताती हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, ये माजी में गुज़रे हुए अजीम लोग हैं। इनके हालात ज़िंदगी पढ़ने के बाद हमें जोश और हौसला मिलता है। हाँ, जोश और हौसला दिलाने वाले इनके काम हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से माजी में गुज़रे हुए अजीम लोगों के हालात ज़िंदगी का बयान करके
ہمیں جوش اور حوصلہ دلانے کا کام بھی کون کر رہی ہے؟ تاریخ ہی کر رہی ہے۔ جب ہم ان کے زندگی کے کارنامے پڑھتے ہیں، ان کے زندگی کے حالات ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ ہی سے ہماری اور دوسری تہذیبوں میں باہمی لین دین اور انسانی تہذیب کی ترقی کی منزلیں معلوم ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی طرز زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آتی گئی۔ اب دیکھیے، ہر بستی، ضلع، ریاست، ملک کی الگ الگ تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین، اس پر موجود پہاڑ، دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ، آبی ذخائر، وہاں کے حیوانات، نباتات، انسان، غرض سب کی علیحدہ تاریخ ہوتی ہے۔ ہر سائنس کی بھی اپنی انفرادی تاریخ ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر انسانی تہذیب میں اہم تبدیلیاں لانے والی بے شمار سائنسی تحقیقات کا پتہ چلتا ہے۔ ان سائنسدانوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے جنہوں نے یہ تحقیقات کی ہیں، ان چیزوں کا پتہ چلایا ہے۔ زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل مختلف واقعات کی مربوط زنجیر میں جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے انگریز حکومت سے لڑائیاں لڑی۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کی وجہ سے 15 اگست 1947 کو ملک بھارت آزاد ہوا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات اسی طرح ان اعمال سے جڑے ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے تھے، ہے نا؟ جو ماضی میں ہم نے کیے تھے نا، وہ اعمال ہم سے کیا ہوتے ہیں؟ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ پہلے کیے ہوئے یعنی زمانے ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آج آپ پنجم جماعت میں ہو، آج سے ہی آپ سمجھو اسی جماعت سے اچھی پڑھائی کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، آگے چل کر آپ جب مستقبل میں بڑے ہو جائیں گے تو کسی نہ کسی اچھے مقام پر پہنچیں گے۔ مطلب کیا؟ ہمارے جو ماضی کے واقعات ہوتے ہیں انہی پر ہمارا مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ہم پڑھائی نہیں کریں گے، دھیان نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہمارا مستقبل سنورے گا کیا؟ ہم کسی اچھے مقام پر پہنچ پائیں گے کیا؟ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ زمانے ماضی میں جو کچھ ہم نے بویا ہے وہ ہم کو کب ملے گا؟ مستقبل میں ملے گا۔ یہ سب باتیں ہم نے کس سے سیکھی؟ تاریخ کے مطالعے سے، یعنی یہ سبق ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے، بہت قدیم زمانے میں انسان نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، آگ کا استعمال سیکھا، ہے نا؟ یہ دیکھیے، ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، پھر یہ آگ کا استعمال اس نے سیکھا، پھر پہیے کی دریافت ہوئی۔ بعد میں آنے والی نسل نے اس کو مزید بہتر بنایا۔ انسان کی جسمانی اور ذہنی ترقی کے ساتھ تکنیکی علم ترقی کرتا گیا۔ جس طرح آج کا دور ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر والا دور، اور پرانا دور دیکھیں گے جس میں آگ کا استعمال کرتا تھا انسان، ہے نا؟ یہ پرانا دور، زمانے ماضی کا دور، اور یہ آج کا دور۔ اس طرح سے بعد میں آنے والی نسل نے اس کو مزید بہتر بنایا، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ تو ماضی کی دریافتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں نئے نئے انکشافات کرنا ممکن ہوا، نئے نئے طریقے ڈھونڈے گئے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور سوالات کے جوابات کو لکھنے کی کوشش کیجیے۔
خدا حافظ.